लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स, थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। So it all started back in 2014 when the Royal Enfield launched the Continental GT 535. It was the first cafe racer of India with a 535cc engine, the twin pods and clip-ons. And I was in love with this bike. लेकिन उस टाइम मैं कुछ 13-14 साल का था एंड आप अभी सोच रहे होंगे कि 13-14 साल के लड़के को एक बाइक के बारे में कैसे पता चला। So there was a time जब मैं दिल्ली गया हुआ था for my summer vacations and there I noticed the Continental GT 535. Obviously GT 535 एक काफ़ी ज़्यादा रेयर मोटरसाइकिल थी एंड ये मेरे शहर में तो नहीं दिख सकती थी। एंड अ सिटी लाइक दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, मैंने वो देखी एंड इट वॉज द कॉन्टिनेंटल GT 535 इन ब्लेजिंग रेड कलर। एंड एट दैट टाइम जो पिक्चर मेरी आंखों ने उस बाइक की उस टाइम पे खींची वो अभी तक मेरे दिमाग में वैसे की वैसे क्रिस्प एंड क्लियर है। बट ऑब्वियसली आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड एंड एक 14 साल का बच्चा ना तो एक बाइक अफोर्ड कर सकता है ना उसको चला सकता है। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो कॉन्टिनेंटल GT 535 जैसी बाइक तो नहीं कर सकता अफोर्ड। So years passed by. Around in 2018, Royal Enfield discontinued the GT 535. And I was really disappointed कि यार अभी मैं पूरी अपनी लाइफ में एक GT नहीं ओन कर सकता, a cafe racer. And at that time, that dream of owning a Continental GT was clear and dead inside my mind. Cut to the next year in 2018, I got my first two-wheeler in my 10th standard. That was a Bajaj Chetak. I really loved this one because it was my first convenience vehicle. And I got it painted and got it modified and I did every experiment a teen can do, like cutting and splitting it with grinders and changing the exhaust notes and stuff like that. And it was a really good companion of mine. And I rode it like for 3 years. It was like 2018, 19 and 2020 is lockdown. Cut to 2021. It was 2 years after my school and I was well established, well earning and इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा एक केपेबल बन चुका था कि अगर कॉन्टिनेंटल GT होती तो आई वुड हैव बॉट इट। बट आफ्टर द 2018 इंसिडेंट, आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन, मैंने उसको छोड़ दिया था ड्रीम को एंड आई नेवर लुक्ड अपॉन इट एंड मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है रॉयल एनफील्ड में। कट टू 2021, माई फैमिली अर्ज अ नीड ऑफ अ 4-wheeler, a car. And obviously, I was financially stable at that time. So we got one. It was Tata Tiago. And around March 1, exactly on March 1, we got my first car. It was a feeling of accomplishment, feeling of happiness that I was able to afford a car. But there was a little bit missing out in the back of my head कि यार कुछ ना कुछ missing है. But I cannot figure it out कि क्या missing है exactly. After owning the car and driving it into the city and state for 1 year, मेरे को एक 2-wheeler की कमी महसूस हुई मेरे घर के अंदर। बिकॉज इवन फॉर 2 किलोमीटर्स और 5 किलोमीटर्स मेरे को अपना 4-wheeler यानी कि कार लेके जाना पड़ता था एंड इट वॉज रियली नॉट इकोनॉमिकली हेल्पिंग बिकॉज अ कार ओनली गिव्स अराउंड 10 और 12 की माइलेज इन सिटी। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ 2-wheeler अराउंड इन 2022 मिड, अराउंड इन अगस्त सितंबर, and I looked upon so much 2-wheelers including the Splendor, Discover, Pulsar and like मैंने सब देखे जाके। लेकिन मेरे 2 शॉर्टलिस्ट हुए थे 2-wheelers इन दिसंबर 2022 जो कि थी जावा पिराक, द ब्लैक्ड आउट इंजन, द सिंगल सीट बॉबर विद फैट टायर्स। इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। मैंने ऑलमोस्ट इसको फाइनलाइज कर ही दिया था। देन मेरे दिमाग ने कहा क्यों ना हम एक बारी KTM भी देख लें। देन आई लुक अपॉन द KTM Duke and RC 390. They are wonderful bikes. And whoever calls them Chapri, you know, the riders is Chapri, not the bike. So KTM RC 390 and KTM Duke was really good. And I shortlisted Java Pirak and KTM Duke 390. And I was just juggling around कि मैं कौन सा लूँ and which will be more practical for me. But one day in December 2022, it was like after the 20th December when it is fully chilling in Punjab and it is fully foggy mornings. It was 8 a.m. around. I was at the highway going somewhere I cannot really
figure out where I was going, but I was going somewhere, and I was at the highway. Then I noticed a riders group going for a ride, and in there I noticed a very weird bike जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, ना मेरे को देखने को मिली थी. I researched and I came to know that the Royal Enfield launched 650 Twins in 2019 after 1 year of discontinuing the Continental GT 535. क्योंकि मेरा वो सपना बिल्कुल ही चूर चूर हो गया था, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना भी बंद कर दिया था. लेकिन मैं इतना डम हूँ कि मैंने ये तक रिसर्च नहीं किया कि इज़ देयर अ न्यू कैफे रेसर इन द टाउन. एंड एट दैट मोमेंट जावा पिराक और KTM ड्यूक 390 मेरे दिमाग से वाइप आउट ही हो गए. एंड आई वाज लाइक लेनी है यार, तो GT 650 लेनी है. एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड लुकिंग अपॉन इट. I was watching all sort of videos of delivery, of reviewing it, of riding it, of modifying it on YouTube, and I was dreaming of owning it for every single second of my day. Cut to February 2023, मैं गया रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, एंड इट वॉज सरप्राइजिंग कि किसी भी शोरूम में कॉन्टिनेंटल GT 650 है ही नहीं थी, बिकॉज इट इज़ सो रेयर एंड सो लो इन सेल्स. लाइक इसको ज़्यादा लोग नहीं खरीदते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियली हाई प्राइस, एंड इट्स लाइक नॉट अ रेगुलर मोटरसाइकिल. तो ये किसी भी शोरूम में है ही नहीं थी. एंड आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटिंग यार कि मैं अब GT 650 कैसे देखूंगा. लेकिन मैंने कहा यार देखनी तो है. So I took up my car. I drove around 120 kilometers to Chandigarh, and there I looked upon the Continental GT 650. तो यार जब GT लेने का पक्का मन बना ही लिया था, तो उसको जो है टेस्ट ड्राइव करने का मतलब बनता नहीं था. एंड ऑब्वियसली 650cc को अंडर एस्टिमेट में नहीं कर रहा था. तो मैं अपने शहर वापस आया, जो कि था लुधियाना पंजाब. मैंने करवाई GT बुक, एंड अ वॉपिंग 2 months ऑफ वेट के बाद वो दिन आ गया जब हम लेने जा रहे हैं अपनी GT 650 मिस्टर क्लीन एडिशन. So hey, what's up everyone, welcome back to another brand new vlog. And इस दिन का मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था, मतलब कल के दिन का बहुत सारे टाइम से इंतज़ार कर रहा था. अभी बज रहे हैं 29 अप्रैल, प्रैक्टिकली 30 अप्रैल हो गए हैं. 30 अप्रैल हो गया आज. एंड मेरे बालों को जो है वो इग्नोर करो, बिकॉज मैं रात को ये लगा के सोता हूँ, बिकॉज हेयर स्टाइल बन जाता है ना. तो गेटिंग सो लेट्स गेट टू द पॉइंट. सो गेटिंग लाइक माई इट्स लाइक माई ड्रीम बाइक. एंड मेरे को पता है कि आप सब भी रिलेट कर पाओगे मेरे से. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू, क्योंकि मैंने जब अपनी फर्स्ट कार ली थी तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि भाई कैसा एक्सपीरियंस था, और मैं ये वाला भी बहुत अच्छे से कैप्चर करके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. सो बने रहिएगा वीडियो पे एंड तक. एंड आई एम जस्ट रैपिंग अप एवरीथिंग. मैंने यहाँ पे जो है अपना PC का सारा काम निपटा दिया, क्योंकि कल है मेरी छुट्टी होने वाली है, तो कल मजा आने वाला है. एंड आई हैव लाइक लोड्स एंड लोड्स ऑफ मॉडिफिकेशन जो कि मैंने ऑर्डर कर रखी है पार्सल से, एंड लगभग सारी आ गई हैं. एंड कल जो है सुबह अराउंड 11-12 बजे हम जा रहे हैं फॉर द बाइक डिलीवरी. एंड आपको बहुत जल्दी पता लगने वाला है कि मैं कौन सी बाइक ले रहा हूँ, कितने की है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कौन सा कलर, सब आपको पता लगेगा. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी स्पेशल बाइक जो कि आपको नॉर्मली रोड्स पे नहीं देखने को मिलती है. दैट्स व्हाई इट्स स्पेशल, दैट्स व्हाई इट्स माय स्ट्रीम, दैट्स व्हाई इट्स माय ड्रीम बाइक. एंड सो मैं जल्दी से सोता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है मेरे को आज नींद नहीं आने वाली 3-4 बजे तक. सो लेकिन मैं ट्राई करूँगा मैं जल्दी सो. बाय द वे मैं 3 बजे ही सोता हूँ एवरेज, ऑन एन एवरेज डे. लेकिन मैं कल सुबह मेरे को जल्दी उठना है, तो मैं जो है 11-12 बजे सो रहा हूँ. एंड मेरे को पता है 3 बजे तक मेरे को नींद नहीं आएगी, बट लेट्स ट्राई. सो या लेट्स गेट टू स्लीप. सो गाइस, गुड मॉर्निंग. मैं अभी उठ चुका हूँ. एंड इतना टाइम हो रहा है, 10 बजे हुए हैं सुबह के. एंड अभी नहाएंगे, धोएंगे, खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड देन अपना डॉक्यूमेंट देखेंगे, कैश देखेंगे. एंड मेरी आँखें अभी तक अच्छी तरह खुलनी नहीं है, बिकॉज मैं जस्ट अभी उठा और कैमरा बाजू में पड़ा था. आई एम जस्ट गॉट टू व्लॉग. एंड हाँ, चलो हाथ धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं. तो गाइस अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट. तो मैं बता दूं आपको, ये है आलू बैंगन की सब्जी और ये है पराठे अमूल बटर के साथ. ओ माय गॉड. एंड दिस इज वाटर, ठीक है. एंड जी हाँ, सॉरी अबाउट दैट. एंड जी हाँ, मैं ब्रेकफास्ट में 2 ही परोठे खाता हूँ, बस 2. एंड या चलो मैं करता हूँ और मिलता हूँ आपसे. तो गाइस मैं हो गया नहा धो के रेडी, बट थोड़ा सा काम था जो कि
मेरे को अभी कंप्लीट करना है, तो अब कंप्लीट करेंगे एंड साथ में पियेंगे चाय, बिकॉज चाय के बिना यार नहीं हो पाता, मतलब चाय मतलब यू कैन से इट्स अ ड्रग, ठीक है। तो थोड़ा सा काम रहता है, वो करते हैं कंप्लीट, चाय पीते हैं, तब तक मॉम जो है रेडी हो रहे हैं, तब तक जो मेरा दोस्त है वो आएगा, हो जाएगा 11 बज जाएंगे, 10:30 हो रहे हैं, 11 आराम से बज जाएंगे, 11:30 तक निकल जाएंगे। एंड अभी इस क्लिप के बाद सीधा मिलते हैं शोरूम में, नहीं बीच में मैं आपको दिखाऊंगा शॉप या चलो मैं काम करता हूँ। तो गाइस रॉयल एनफील्ड शोरूम पहुंचने के बाद एज इट वाज संडे, तो संडे को ज़्यादा वहाँ पे भीड़ नहीं होती, एंड जो इन्होंने शोरूम खोला था वो सिर्फ मेरी डिलीवरी के लिए खोला था। एंड फिर हमने किया सारा पेपर वर्क इंक्लूडिंग दी रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल, इंश्योरेंस और कुछ सर्विसेज के रिगार्डिंग भी पेपर वर्क होता है, जो कि आई गेस 4 फ्री सर्विसेज मिलती हैं, तो वो की हमने। एंड यहाँ पे हमको एक पेमेंट का दिक्कत हो गया था कि भाई जो पेमेंट है वो कोई भी शोरूम 2 लाख से ऊपर का कैश में नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यूपीआई की लिमिट मेरी हो गई थी ख़त्म, जैसे कि आपको पता है कि 1 लाख यूपीआई की लिमिट है पर डे, तो पेमेंट का हो गया था दिक्कत। तो लेकिन इन्होंने कह दिया था कि भैया आपने ऑलमोस्ट 70% पेमेंट कर दिया, तो बाकी जो बची पेमेंट वो अगले दिन कर देना, तो ये सॉर्ट आउट हो गया था। एंड या यही थी भाई डिलीवरी, नथिंग लाइक मच। हेयर यू कैन सी मी टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द मोटरसाइकिल, नथिंग एक्साइटिंग। जैसे कि आप देखते हो कि रेड कारपेट वाला कपड़ा होता है, तो वो इन पे है नहीं। मैंने को कहा था कि मेरे को यार वो रेड कारपेट वाला दे दो, तो मैं ऐसे रिवील कर दूँ मोटरसाइकिल, लेकिन इन पे है ही नहीं था। तो पार्टी पॉपर्स भी नहीं थे इन पे, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता है इतना, वो सब जो होते हैं ना वो चोचले होते हैं, वो हमने नहीं किए। वी जस्ट गॉट द डिलीवरी नॉर्मल एंड या द बाइक वॉज होम। ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਓ ਪੁਲਿਸ ਓਏ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਆ। ਡਰੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਬਾਬੇ ਦਾ। क्या बात है, क्या बात है। ਕਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿੱਟ। रैचेट हैंडल 24 पीस स्क्रू ड्राइवर सेट। चलो भाई तो गाइस ये 20,000 के हैं और ये मेरे को 1 महीने बाद मिले हैं। ये फ्री है, ये साथ में इन्होंने फ्री दिया है। अभी खोल लेते हैं। ਲੈ ਬਈ क्या कैसे लगाना है, कैसे करना है, टूल्स रिक्वायर्ड है ये। ठीक है, भाई बहुत हैवी है। ओके है जी, ये लगा है जो ऑब्वियसली हम इसको बाद में रिमूव कर देंगे।
दूसरा बहुत भारी ओके भाई और सामान भी है स्टिकर्स है ये स्टिकर है नेट है बस 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 20,000 का इतना ही सामान मिलता है क्या बात है ठीक है तो पहले ये वाले निकाल लें हमने इसके लिए हमको टूल चाहिए जो कि इसके टूल किट में होगा शायद होगा इसके टूल किट में मेरे को पक्की बात नहीं पता पहले ये वाले नट खोल लें हाँ लग गया तेरे खोल के मिल रहे एक ही है नहीं एक ही पूरी प्लेट बाहर आ जाएगी इसके बाद हमने ये खोलना है अच्छे से दिखा दो भाई ताकि कोई जो भी नया इंस्टॉल कर रहा है उसको पता लग जाए नेवर माइंड पहले ये खोल लेते हैं भाई साहब फुल टाइट है अच्छा पीछे से भी लगेगा तो ये कैसे करेंगे अच्छा ठीक है ये अलग साइज की है हाँ पीछे खोल गला लॉक तो वही मैं क्या कह रहा हूँ लास्ट टाइम उसकी एग्जॉस्ट साउंड वाली सुन लेते हैं है ना ठीक है ना ठीक है तो गाइस अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि GT50 कैसे साउंड करती है तो न्यूट्रल का अब ये थी स्टॉक आवाज जो कि हमने आखिरी बारी सुन ली है अभी इसको ठीक है तो खुलेगा एक ही खुलेगा और एक इसके पीछे ये 3 नेट खुलेंगे और उसके बाद आपका सिस्टम जो है बाहर आता है मेन ये वाला है जो क्लिप ऑन है तो इसको खोल लीजिए बड़ी और अभी बहुत भारी तो भाई हमने दोनों साइड के खोल के ये लगा ले भाई तूने पहले लगा दिए उतार ठीक है तो मैं आपको स्टेप बताया था क्या करने तो ये जो है ये आता है स्टॉक के साथ मतलब यहाँ पे ऐसे लगता है ये ठीक है तो ये जो है आपने इस रेड रोस्टर्स एग्जॉस्ट के यहाँ पे लगाना है ऐसे अरे भाई ऐसे लगेगा ये एंड देन इट विल गो हेयर तो ये इसका सपोर्ट हो जाएगा और ये जो क्लैंप है स्टॉक क्लैंप आता है इसकी ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ही जगह दे रखी है तो ये खुद ही क्लैंप की तरह एक काम करेगा तो कुछ नहीं है ज़्यादा इतना बड़ा कुछ है नहीं इतना लगा के भाई वो कितने किलो के होंगे भाई 10 किलो 10 किलो आराम से फिर उसके बाद ये इसका कवर है जो कि यहाँ पे आ जाएगा टू प्रोटेक्ट द हीट श्रिंक तो अभी आपको दिखाता हूँ
तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो अगर आपको भी हो कन्फ्यूजन तो ये है जैसे, और ये जो क्लैंप है इसका देना भाई, दूसरा क्लैंप देना। तो स्टॉक में ये ऐसे लगता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे नॉर्मली मतलब सीधा लगता है, ये मतलब राइट साइड का है तो ये ऐसे लगेगा। लेकिन ऑन द एग्जॉस्ट जैसे कि आप देख सकते हो ये उल्टा लगेगा, मतलब ये ऐसे लगता है लेकिन इस पर ये ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है अगर आप इसको ऐसे लगाओगे। और लेफ्ट साइड राइट साइड का ध्यान रखना, जिस तरफ यहाँ पे स्टिकर है, मतलब अगर आप ऐसे लगा के देखोगे तो स्टिकर इन फ्रंट होगा, तो ये उस साइड का होगा, जैसे आप देख सकते हो ये राइट का और ये लेफ्ट का है, तो ये भी ध्यान रखना है। और बस यहाँ से मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन थी तो मैंने कहा बता दें। अभी बस ईजिली क्या करना है, स्लिप ऑन करना है एंड नट कसना है 2 और डन। तो भाई एग्जॉस्ट फिट हो गया, जैसे आप देख सकते हो। एक नट ये लगा, एक यहाँ लगा, इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है आपने, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एंड अभी इसका कुछ नहीं है, बस ये ऐसे रखना है, ये हीट शील्ड है और इसको ऐसे ऐसे करके कर देना। ये साथ में इसके नट आते हैं, इजी है। इस करके आपने इसको पेचकस भी ले लेना। अब ये पेचकस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था किसी काम का नहीं है, लेकिन ये सॉरी है काम का, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो गलत ले लिया मैंने। एंड ये ठीक है, एक साइड के एग्जॉस्ट फैन लगते हैं, ठीक है। अभी दूसरी साइड में जाते हैं और फिर आपको सुनाते हैं इसकी आवाज़। अंदर देखा, तो ये करूँगा कि इसको दोबारा से बीच में ही कस दो नटों को, ताकि आगे कभी ज़रूरत पड़े तो आप एक्सेसिबल हो, मतलब डीबी के लिए लगाने की ज़रूरत पड़े आगे कभी फ्यूचर में, तो आराम से आपको नट मिल जाए। रेड GT 650 अभी आप सुन लेना आराम से, वो स्टॉप पड़े अभी आप सुन लो। स्टार्ट करने के बाद 10-5 मिनट आइडल छोड़नी है, 5 मिनट आइडल छोड़नी है। सेव नहीं कर रहा अभी, इसको छोड़ते हैं तब तक सारे टूल इकट्ठे। शांति हो गई करी। अब पता चल रहा है 6.5 सीसी इंजन है, डबल पिस्टन है। रॉयल एनफील्ड वाले ना स्टॉक लगा के ना इसका गला घोट देते हैं। अब इसका गला खुल चुका है पूरा। उसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी बताता हूँ। एग्जॉस्ट सिस्टम मॉडिफाइड लगाने से पहले तो 1-2 लीटर माइलेज कम होती है, और अगर यार आपको मज़ा आ रहा है तो माइलेज का कोई सवाल नहीं पैदा होता, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि वो पुलिस वाला चक्कर तो रहता ही है, बाकी अपनी जान पहचान है, उसकी दिक्कत नहीं है कोई। एंड तीसरी बात इसके एडवांटेजेस ये हैं कि पावर बढ़ती है, क्योंकि अब फ्लो सीधा हो गया, तो जो है इनटेक और एग्जॉस्ट में दोनों में फ़र्क आ जाता है पकड़ना में। तो तीसरी बात यह है कि टोरा होता है भाई, टोरा होता है। तो अभी हम बाहर लेके जा रहे हैं इसको, एंड रिएक्शंस देखेंगे कि क्या मिलते हैं, क्योंकि तो भैया रिएक्शन बहुत गंदे मिलने वाले हैं। ओह माय गॉड। बाय द वे ये जो की चेन है ये क्रिप्टो ने दिया है मेरे को एज अ गिफ्ट। ह्यूज शाउट आउट टू क्रिप्टो डार्थ और दिस की चेन, काफ़ी अच्छा है। अभी इस पे कपड़ा मारते हैं, उसको बाहर लेके जाते हैं। So guys, this is right here the Royal Enfield Continental GT 650 the 2023 model, and अभी हो गया रात एंड ये कुछ चल चुकी है अराउंड कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे 526 किलोमीटर्स। जी हाँ, पता नहीं फोकस क्यों नहीं कर रहा है, दोनों। तो ये चल चुके हैं 546 किलोमीटर और इसकी पहली सर्विस का टाइम आ गया।
एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे को कितने की कॉस्ट पड़ी है उसकी विद मॉडिफिकेशंस। कि जो जो मैंने मॉडिफिकेशन, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस क्या क्या करवाई है मैंने। सबसे मेजर मॉडिफिकेशन जो है इसके एग्जॉस्ट है, जैसे आप देख सकते हो ये जो है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है। इसके अपने स्टॉक वाले हटा दिए मैंने एंड दीज कॉस्ट 19,000। अभी इनका प्राइस बढ़ गया है बिकॉज मैंने जब ऑर्डर किए थे तो उनका ये रेड रूस्टर्स का पुराना वर्जन था। अभी आई डोंट नो, वो बोल रहे हैं कि हमारा कुछ नया वर्जन आया तो उसका कुछ 21,000 हो गया है, तो 2-3 हज़ार बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे को ये पड़े 19,000 के। बात कर लेते हैं चारों इंडिकेटर्स की। तो मैंने इसमें डाले हैं सिमटैक के एलईडी बल्ब्स, क्योंकि जो इनके हैलोजन बल्ब्स होते हैं दैट इज़ नॉट ब्राइट। तो आप देख सकते हो इनमें है सिमटैक के एलईडी बल्ब्स जो कि अराउंड 600 रुपीज़ के 4 थे, चारों 600 रुपये के थे, ठीक है। साथ में मैंने डाला है सिमटैक का स्विचलेस अपना क्या कहते हैं हैज़र्ड फ्लैशर, जिसके वजह से दीज आर फ्लैशिंग लाइक दीज, ठीक है। इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं और ये कुछ यहाँ पे सीट के नीचे लगता है, बड़ा इजी इंस्टॉलेशन है, मैंने खुद ही कर लिया था। उसके बाद मिरर्स, ये वाले मिरर्स, ठीक है, ये है जैसे कि वो पता है रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल, एंड ये है 6,000 के। जी हाँ, ये मिरर्स 6,000 के, लेकिन भाई मेरे को ये बहुत अच्छे लगते हैं, एनहांस करते हैं लुक को बहुत ज़्यादा, तो मैंने ले लिया। मैं एक बार लेना है तो ले लिया, ठीक है। इसके बाद और कोई इसमें मेजर ऐसे मॉडिफिकेशन नहीं है। ये ऐड करे हैं, ये आपको एग्जॉस्ट के साथ नहीं मिलते। दीज आर कॉल्ड पिलियन फुटरेस्ट शायद मे बी, और ये मेरे को कुछ 800-900 के पड़े थे, आई डोंट नो, इतने के थे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थी मेरी मॉडिफिकेशन, इतनी ही मॉडिफिकेशन है, बाकी थोड़ी बहुत होती है, जैसे मैंने ये ब्लैक आउट करवाए हैं, ये सब यहाँ पे लेमिनेशन करवाई हैं। यहाँ पे भी लेमिनेशन अभी मेरी करवाने वाली है, मैं कल पहले सर्विस के लिए जा रहा हूँ, इसकी लेमिनेशन भी मैं कल ही करवा लूँगा। लेमिनेशन इन सेंस PPF नहीं, PPF बोलता हूँ। एंड और इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, इतनी मॉडिफिकेशन इसमें इनफ है। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल बाइक करूँ इतने बढ़िया रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 अगर आप 2023 में लेने जाते हैं तो आपको ऑन रोड कितने की पड़ जाएगी। सो दिस बाइक कॉस्ट मी एग्जैक्टली 3,98,000 रुपीज़ विद द एक्सेसरीज, विद द मिरर एंड विद द सम्प गार्ड। मैंने इंजन गार्ड भी लगवाना था लेकिन उन पे है नहीं था, तो मैंने कहा भैया अभी रुक जाओ, पता नहीं वो लगवाऊंगा कि नहीं। मैं बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है तो मैं लगवाऊंगा ज़रूर, अभी नहीं, उसको एक्सक्लूड कर दो। 3,98,000 की पड़ गई है ये मेरे को ऑन रोड विद इंश्योरेंस, विद रजिस्ट्रेशन, प्लानर, 100 चीज़ होती है, तो वो सब पढ़ के मेरे को 4 लाख ही बोल देता हूँ। मैं जो भी मेरे को पूछता हूँ बोलता हूँ 4 लाख की पड़ गई। तो लिटरली जनवरी में 2023 जनवरी में जब मैंने पता किया था तो ये थी 3,76,000 रुपीज़ की, ठीक है, ऑन रोड। ये वाला सेम कलर, यही सब कुछ सेम, लेकिन उसके 1 महीने बाद ही रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किया इसका फेसलिफ्ट इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ फेसलिफ्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। पहली बात तो हेडलाइट जो कि चेंज हो गई है, अब इसकी LED हेडलाइट आती है, पहले इसकी हैलोजन आती थी, ठीक है। उसके बाद ये स्विचेस इन्होंने चेंज किए, ये वाले, ठीक है, ये वाला स्विच चेंज किया इन्होंने, ठीक है, ये वाले स्विचेस चेंज किए, तो इसकी वजह से इसका जो प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। एंड इसमें एक और फीचर है जो कि स्टैंड वाला है, स्टैंड लगा होता है तो स्टार्ट नहीं होता, एंड स्टार्ट होते होते स्टैंड लगाते होते बंद हो जाता है, वो फीचर्स है। इन फीचर्स की वजह से ये अभी कॉस्ट करती है आपको 3,98,000, 76,000 से 98,000 में आ गई है। एंड मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा जंप होना चाहिए था सिर्फ एक हेडलाइट की वजह से। एक हेडलाइट ही मेजर अपडेट है, ये स्विचेस पहले वाले बेटर थे, बिकॉज ये जो है पता नहीं आपको पता लग रहा है कि नहीं, लेकिन ये स्विचेस जो है भैया फोकस क्यों नहीं होता ये, हाँ, ये स्विचेस जो है ये प्लास्टिक है, ठीक है। पहले वाली GT में स्विचेस मेटल के आते थे, वो फील अच्छी देते थे, ये प्लास्टिक, दीज आर ऑल्सो गुड, बट मेटल होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एंड दैट इज़ हाउ मच दिस पीस कॉस्टेड मी विद मॉडिफिकेशंस एंड ऑल। So guys, this was the actual vlog of my motorcycle delivery. तो ये तो मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया, जब मैं 80-90 साल का हो जाऊंगा, प्रोबेबली 100-150 साल का हो जाऊंगा, तब मैं इसको वापस देखने आऊँगा और अपने बच्चों को दिखाऊंगा, तो बोलूँगा यार कि क्या दिन थे वो भी। जोक्स असाइड, इट फील्स गुड टू अचीव योर ड्रीम्स, इट फील्स गुड टू गेट योर ड्रीम बाइक ऑब्वियसली। और अभी जो है लाइक यू कैन से कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लाइक अलग अलग प्लान्स बनने वाले हैं कि मैं जाने वाला लॉन्ग टूर पे फलाना टाइम करना। जो एक और सबसे बड़ा प्लान होता है दैट इज़ लेह लद्दाख फॉर लाइक ऑन मोटरसाइकिल।
तो वो भी करेंगे बहुत जल्दी। अभी तो मैं कल ही अभी फर्स्ट सर्विस करवा के अपनी बाइक की विच इज़ 500 किलोमीटर्स। तो उसमें अगर आपको खर्चा पता करना है तो मैं सीधा सीधा बताता हूँ, 3,000 रुपये खर्चा हुआ है। एंड फर्स्ट सर्विस के हिसाब से बहुत ज़्यादा खर्चा है। मेरी कार पे भी लिटरली 800 रुपये खर्चा आया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी बाइक ली है महंगी तो इसका मेंटेनेंस तो उठाना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो या थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी विद दिस जर्नी। एंड अगर आपको आज ये वीडियो चलेगी तो लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। या दैट्स अवर टुडेज व्लॉग। एंड हाँ, मुझे पता है मैं व्लॉगिंग में बहुत बुरा हूँ, लिटरली मेरे को नहीं पता मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाता। ओ भैया क्या हो गया? ओ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी भाई, अब तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी। ओके ओके चलो, या लेट्स रैप दिस अप। ऑलरेडी मेरे हिसाब से 30+ मिनट्स का व्लॉग हो चुका है एंड मैं आपको और टाइम नहीं लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लीव अ कमेंट about my motorcycle, about your dream bike. Do let me know about your dream bike in the comment section below. मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई एम लेट, साइनिंग आउट।